Hello students, my name is Ajit Pal Singh and today we will start the very first chapter of physics of class 9th, which is motion. And in this chapter, or even in whole physics, or you can say science, we are always tend to know the answer of three questions. Those questions are what, how, why, and application. So when there is the sign of science, there is a sight of science in your mind, then the first question which arises is what? What to discuss? What to discuss? Second is how. The phenomena which we are discussing is how. How is it happening? What is the reason behind that particular phenomena? Firstly, what? The answer of what is the phenomena that we want to discuss this phenomena. How? How the answer is how that phenomena comes to play. And third is why. Why we have to discuss that phenomena. What is the importance of that phenomena and what will be the applications of that phenomena is here. So, the first chapter of 9th class physics is motion, which only goes with this part. What? How? The second chapter, force and Newton's law of motion, is the answer of this part. Why and application are the next two chapters, that is gravitation and work, power, energy. These are part of next two chapters. So now in this chapter we only have to discuss what is motion, the fundamental question, and why it is so important. Why motion is so important and what is it? So, as we know, there are two states of a body. One is called rest and second is called motion. So what do you mean by rest position or rest state of a body? Rest. Likewise, I am standing here and I am not changing my position with respect to that camera. It means that I am in rest. But when I am changing my position with respect to my previous position, then it's said to be I am in motion. So, what is motion? Motion is the movement. What comes in your mind when you remind of motion or when you thought of motion? What thing comes into your mind? Like when we thought of a chair, a picture has appeared in our mind. When we thought of a train, a picture has appeared in our mind. Then which kind of picture is appeared in your mind when you thought of motion? किस तरह ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਟ ਦਾ, ਕੀੜੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ मूवमेंट ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, that is called motion.
ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ with respect to previous position, but it cannot clearly discuss motion। ਇਹ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ, with respect to time, which explain motion in best manner। बट अज आप ये ही गल करांगे सिर्फ with respect to one position, previous position, motion की गल किवें। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला इत्थे खड़ा सी, फिर मैं इत्थे चला गया। मेरा मतलब बेटा मैं की कीता, मैं मूव किया। मैं की कीता, आई एम मूविंग, मैं मोशन दे विच आया। मैं इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन ते पहुंचया। पर की मैं दस सकदा किसी नूं, या फिर जे फॉर एग्जाम्पल कोई बाहरला बंदा, मैं बाहरले बंदे नाल गल कर रहा, वो कहूगा यार तू कित्थे सी, मैं कहूँगा मैं अकैडमी सीगा। ठीक है, अकैडमी सी मैं यार उदों अकैडमी सी जदों तू घरे आया सी। ठीक है, तो वो कहूँगा मैं तो घरे 10 बजे आया सीगा, तू अकैडमी कदों गया सी। मैं कहूँगा ये नहीं मैनू पता, बस जदों तू मेरे घरे सी उदों मैं अकैडमी सी, उदों मैं आपदे घर तो दूर गया होया सी, मैं आपदे घर दे तो मोशन दे विच सीगा। ठीक है, वो कोई भी गल समझ नहीं आई, तू किन्ने बजे पहुंचया, किन्ने बजे उत्थे तू खड़िया, की कीता तू उत्थे, किन्ने बजे तेनू टाइम किन्ना लग गया इत्थे आउंदे आउंदे नूं। मैं कहूँगा भी मैं 10 बजे गया, 12 बजे तक लैक्चर रिकॉर्ड किया, वो लैक्चर रिकॉर्ड नहीं होया, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर मैं दोबारा लैक्चर रिकॉर्ड किया, फिर मैं दोबारा लैक्चर रिकॉर्ड किया, 2 बार मैं लैक्चर दोबारा रिकॉर्ड किया, तां करके मैनू उत्थे घट्टो घट्ट 3 वज गए, तां मैं इत्थे पहुंचया। ਇਹਦਾ मतलब बेटा देखो मैं सारी चीज़ किहदे नाल रिलेट कर रहा, मैं सारी चीज़ एक इहो जी आइडेंटिटी नाल रिलेट कर रहा जिहड़ी सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕ तरह ਦੀ है। टाइम पोजीशन किसी एक ਲਈ होर तरह की हो सकती है, जिवें मेरी अकैडमी गुरु नानक कलोनी वालिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा नज़दीक पै सकती है, तो पूनिया कलोनी वालिਆਂ ਨੂੰ थोड़ी दूर पै सकती है। ठीक है, अपना सुनामी गेट ਨੂੰ उदों भी दूर पै सकती है। पर टाइम सारिਆਂ ਲਈ सेम आ, जो उरे 6 वजे ने तो सुनामी गेट भी 6 वजे होणगे, जे इत्थे 5 वजे ने तो पूनिया कलोनी भी 5 वजे होणगे। तो बेटा एक इहो जी आइडेंटिटी जिहड़ी सब जगह ते कॉन्सटेंट है, विच इज़ एब्सोल्यूट आइडेंटिटी। तो आपां जिहड़ी मोशन की डिस्कशन आ विद रिस्पैक्ट टू टाइम भी करांगे, तो अज दे लैक्चर तो बाद आपां सारी मोशन की डिस्कशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम ही करांगे। बट उदों पहलां आपां नूं विद रिस्पैक्ट टू पोजीशन थोड़ा जिहा समझना पऊगा। जे तुसीं विद रिस्पैक्ट टू पोजीशन नहीं समझ सकोगे तो तुसीं विद रिस्पैक्ट टू टाइम उन्होंने कन्वर्ट ही नहीं कर सकोगे। तो जो आप विद रिस्पैक्ट टू पोजीशन गल करते हैं, मोशन की विद रिस्पैक्ट टू पोजीशन गल करते हैं बेटा, तो मैं एक एग्जाम्पल लेना। एक आंट की एग्जाम्पल लेना मैं। ये कोई आंट है, कीड़ी है कोई, ये चलती जा रही है, ये चल रही है। तुहानूं पता कीड़ियां अलपटा होर ही अजीबो गरीब रास्तियां तो जांदियां ने, इत्थे पहुंच गई चलती इत्थों इत्थे, इत्थों इत्थे, दैन इत्थे, दैन इत्थे। एरो हैड की दस रहे ने वो वेरीअस डायरैक्शन च गई, ਉਹਦਾ कोई पर्टिकुलर डायरैक्शन च नहीं गई, वो वेरीअस, वो हरेक पॉइंट से अपनी डायरैक्शन चेंज करती गई है, ਉਹਦੀ कोई पर्टिकुलर डायरैक्शन नहीं हैगी। जिन्ने रास्ते उन्नियां डायरैक्शनां, जिन्ने पॉइंट्स उन्नियां डायरैक्शनस। वो बेटा इत्थे पहुंच गई। सो ये उन्हें इन्ना पाथ कवर किया, ये सारा पाथ उन्हें कवर किया विदाउट कोई उन्हें डायरैक्शन बारे नहीं सोचा, सिद्धम सीधा चली गई। जिन्ना पाथ उन्हें बेटा कवर किया, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन,
दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। तो इनू मैं ए का नाम दे देना इनिशियल पोजीशन, इत्थे मैं बी का नाम दे देना यदि फाइनल पोजीशन। तो जिन्ना पाथ बेटा इन्हें फॉलो किया है, जिन्नी लेंथ इन्हें कवर की है, जो आप इनू स्ट्रेट च करके देखिए कोई लेंथ ही होगी ना ये, तो वो जी लेंथ इन्हें कवर की है दैट इज कॉल्ड टोटल लेंथ फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उन्होंने आप कहांगे इन्हें डिस्टेंस कवर किया जदों की हो रही सी, जदों मूव कर रही सी, जदों वो मोशन दे विच सी। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। द होल पाथ, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस उन्हें कवर किया, ਇਹਦਾ कोई एक पर्टिकुलर डायरैक्शन नहीं हैगी, विदाउट डायरैक्शन है। हाँ ये यूनिट्स जरूर होणगे, क्योंकि जे मैं कहा इन्हें जी मैनू दसना पऊगा ना, उन्हें सेंटीमीटर दे विच कवर किया डिस्टेंस, या मीटर दे विच या किलोमीटर दे विच, ठीक है। तो जिथे मैं गल करूँगा उत्थे मैं करूँ मीटर्स की। मीटर्स की क्यों करूँ? बिकॉज मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का लेंथ का जिहड़ा SI यूनिट आ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो मीटर है। 1 मीटर 2 मीटर, तो इन्हें मान लो फॉर एग्जाम्पल इन्हें डिस्टेंस जो कवर किया गा वो 12 मीटर किया गा। 12 इज द अमाउंट, अमाउंट है 12, तो 12 इज द मैगनीट्यूड, अमाउंट को आप मैगनीट्यूड कहने मेजर। 12 इज द मेजर, किहदा मेजर? 12 तो केले भी हो सकते हैं, 12 कुर्सियां भी हो सकती हैं, 12 ब्लैक बोर्ड भी हो सकते हैं, फैनस भी हो सकते हैं, फोन्स भी हो सकते हैं। बट वट डू यू मीन बाय 12 हेयर? 12 मीटर्स मतलब 12 मीटर की लेंथ। जो पिछे मीटर लग गया ना तो ऑबवियस है भी ये लेंथ की गल कर रहा, कि गल कर रहा बेटा जी, ये लेंथ की गल कर रहा, वो पर्टिकुलरली ऑबवियस है। तो हुण इत्थे इन्हें गल की 12 मीटर, तो 12 मीटर उन्हें डिस्टेंस कवर किया सारा। मीटर इज SI यूनिट। ये कौन डिसाइड करता? ये मैं तुहानूं दस ही दिता सी कल वाले लैक्चर, लास्ट लैक्चर। हुण एक चीज़ होर हो सकती है, जे कीड़ी थोड़ा जिहा दिमाग लगावे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकती है, इत्थे तक पहुँच सकती है एक पर्टिकुलर डायरैक्शन च जाके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ कोई डायरैक्शन नहीं ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पर्टिकुलर डायरैक्शन तक जाके वो इत्थे तक पहुँच सकती है B पॉइंट तक, मतलब वो आपकी जगह तो इत्थे डिसप्लेस हो सकती है। ये भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऑप्शन आ, इन्ना ना तुरे इन्ना ना भजे, इदों सीधा डिसप्लेस हो जाए। दिस इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। इनू आपां बेटा डिसप्लेसमेंट कहने हैं। Displacement is the shortest path between initial point and the final point of a body. Initial position ਤੇ final position ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ distance ਹੋਊਗਾ that is called displacement. For example, it will be 4 meter, but in this direction, ਇਹਦੇ ਨਾਲ direction ਆਊਗੀ towards B, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ towards B। B वाल नूं 4 मीटर डिसप्लेस हो जाऊगा, B वाल नूं 4 मीटर वो की हो जू बेटा डिसप्लेस। सो इट कैरीज अ डायरैक्शन एंड डिस्टेंस डू नॉट कैरी अ डायरैक्शन, बट यूनिट सेम ने। इन्हां च कॉमन चीज़ की है? यूनिट्स, क्योंकि डिसप्लेसमेंट भी एक लेंथ है तो डिस्टेंस भी एक लेंथ है, तो लेंथ की जो यूनिट्स आ तो यूनिट तो सेम ही रहूगी ना बेटा, यूनिट तो चेंज होने नहीं लगे, लेंथ है। इन्हां च ये तो होगी एक सिमिलैरिटी, एक सिमिलैरिटी होर है इन्हां दे विच। जे मैं कहा जी मेरी आंट है वो इस तरह नाल गोल मोल नहीं जा रही, वो स्ट्रेट जा रही है, वो स्ट्रेट जा रही है तो इत्थे पहुंच गई। A to B स्ट्रेट गई, उत्थे पहुंच गई, ये ਉਹਦਾ डिस्टेंस हो गया, तो यही ਉਹਦਾ की हो गया बेटा डिसप्लेसमेंट होगी। तो स्ट्रेट पाथ दे विच डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट आर इक्वल, डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट आर इक्वल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए इन्हां दे डिफरेंसिस दी, तो सब तो पहला डिफरेंस तो यही आ, डिस्टेंस डू नॉट कैरी एनी डायरैक्शन, डिसप्लेसमेंट कैरी अ डायरैक्शन। हुण जे मैं कहा ये टुवार्ड्स B जा रही है, जे मैं कहा 4 मीटर टुवार्ड्स साउथ तो इस तरह होगा, ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं होना साउथ वाल नूं 4 मीटर जाना। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? ਇਹਦਾ मतलब बेटा डिसप्लेसमेंट हाईली डायरैक्शनल आ, ਤੁਹਾਨੂੰ दसना पऊ भी इधरले पासे नूं इन्ना जा, पर जा स्ट्रेट
कोई करव नहीं आनी चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। सैकेंड इन्हां डिफरेंस की आ जाऊगा, फॉर एग्जाम्पल मैं की करदा, ये जिहड़ी कीड़ी है इन्हें हुण की कीता बेटा, इत्थे रुकी नहीं, इत्थे रुकी नहीं, इत्थों चलदी चलदी दोबारा इदां इदां जांदी वापस इत्थे ही आ गई। मतलब इहदा जिहड़ा जित्थों ये चली सी उत्थे वापस आ गई। ਇਹਦਾ मतलब की होया बेटा, इन्हें कोई पाथ तो फॉलो किया है, मतलब इट हैव सर्टेन डिस्टेंस, इन्हें कोई डिस्टेंस तो कैरी किया, ये कोई डिस्टेंस तो मतलब फॉलो करके आई आ, बट की ये अपनी जगह तो डिसप्लेस होगी नहीं हुई बेटा, जिथे पहला सी उत्थे वापस आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं घरों स्कूल जावां तो स्कूल तो दोबारे घरे आ जा, मैं स्कूल तो घर जाने का डिस्टेंस फॉलो किया, मैं घर तो स्कूल आने का भी डिस्टेंस कवर किया, पर कि मैं अपनी जगह तो डिसप्लेस होया नहीं बेटा, मैं अपनी जगह तो बिल्कुल डिसप्लेस नहीं होया। इसका मतलब की हो जाता भी डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिसप्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। कदों? जो इनिशियल ते फाइनल पॉइंट आपस च की कर जाएंगे पुत्र जी, मीट कर जाएंगे, दैन डिसप्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, तो होर की इन्हां च डिफरेंस आ सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिसप्लेसमेंट, बट एक केस च नहीं होगा, उदों इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन के केस च। ते जिहड़ी अपनी 9th फिजिक्स आ, इहदे विच आपां हमेशा ही स्ट्रेट लाइन नुमैरिकल करांगे, कोई भी नुमैरिकल इस तरह का नहीं आऊ जिहदे विच तुहानूं डायरैक्शनल मतलब तुहानूं स्पैसीफिक डायरैक्शन दित्ती होऊ, तुहानूं हरेक नुमैरिकल इस तरह का आऊ भी अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जिहड़े हाईयर नुमैरिकल्स आउणगे। हाँ, डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट दे विच हल्के फुलके जे डायरैक्शन वाले आउणगे, वो आपां कढ लांगे, बड़े ईजी नुमैरिकल आउणगे, वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच नुमैरिकल च करांगे। पहलां ये चीज़ समझ लो, क्योंकि जे ये चीज़ समझ आ गई फिर तुहानूं उधर कोई दिक्कत नहीं आनी बेटा नुमैरिकल्स दे विच, क्योंकि नुमैरिकल्स दी जिहड़ी अपनी लैंगुएज है वो यही लैंगुएज होंदी है। जे तुसीं फंडामेंटल डेफिनेशनस नूं चंगी तरह कर लैंदे हो तो तुहानूं नुमैरिकल समझण दे विच कोई दिक्कत नहीं आउंदी। जे तुहानूं नुमैरिकल समझण दे विच दिक्कत आ रही है, इहदा मतलब तुसीं फंडामेंटल डेफिनेशनस चंगी तरह नाल तैयार नहीं कीतीआं। ठीक है जी। हुण आपां एक गल समझ लईए इत्थों भी इन्हां च सिमिलैरिटीज़ भी ने, बेसिकली इक्को ही सिमिलैरिटी आ, तो इन्हां दे विच डिफरेंसिस भी ने जो कि काफ़ी ने। सब तो वड्डा डिफरेंस है डायरैक्शन का। तो बेटा 12 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, इत्थे की है बेटा 12 की है बेटा जी मैग्नीट्यूड, मीटर की है बेटा यूनिट SI यूनिट, इत्थे की है 4 मैग्नीट्यूड, मीटर की है बेटा यूनिट, ईस्ट की आ गई डायरेक्शन। तो जिहड़ी क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड ते यूनिट नाल बनी हुंदी है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेटा जी स्केलर क्वांटिटीज। उन्होंने की कहने आ स्केलर क्वांटिटीज। इहदा मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाइल जिन्हां दे विच मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होवे दोज आर कॉल्ड वैक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा डिसप्लेसमेंट इज वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर ते स्केलर च सिर्फ यही फर्क नहीं है भी एक च डायरेक्शन है दूसरे च डायरेक्शन नहीं हैगी, इहदे विच एक होर फर्क है। स्केलर है जिहड़ा बेटा वो स्केलर मैथ फॉलो करदा, वैक्टर लई अलग तरह का मैथ हुंदा विच इज कॉल्ड वैक्टर मैथ। वो वैक्टर मैथेमैटिकल फॉर्मूलेशना फॉलो करदा गा, वो आम मैथ फॉलो नहीं करता। आम मैथ की कहंदा, आम मैथ कहंदा बेटा 4 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर।
बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सीधा ऐड हो गया 4 ते 6 10। पर जे मैं यही गल करा 4 मीटर इन ईस्ट प्लस 6 मीटर इन साउथ इज इक्वल टू हाउ मच? नहीं कट सकते आप, क्योंकि ईस्ट जे आप डायरैक्शनस की गल करिए तो जे मैं इस तरह खड़ांगा या फिर तुम अपनी कॉपी ते हो तो बेटा इधर हैगा ईस्ट, इधर हैगा वैसट, साउथ, नॉर्थ। तो हुण मैं यही गल करदा 4 मीटर ईस्ट एक पॉइंट आ ए, उत्थों मैं 4 मीटर ईस्ट चला गया, 4 मीटर ईस्ट हो गया। देन 6 मीटर साउथ, 6 मीटर साउथ आ गया। हुण जिहड़ा मेरा एक्चुअल डिस्टेंस है या फिर मैं जिहड़ी जगह ते एक्चुअल पहुंचूंगा कि मैं इन्हों ऐड करके दस दूंगा? नहीं, क्योंकि डायरैक्शन आ गई, मैं इत्थे किते होऊंगा, मैनू इस तरह नाल उहनूं देखना पऊगा ए बी सी, मैनू इस तरह नाल जाना पऊ। दिस आ डायरैक्शन जिहड़ी मैं दित्ती आ इहदे लई मैनू पर्टिकुलर डायरैक्शन देनी पऊ। डायरैक्शन किधर नूं जा रहा? ए तो मैं जा रहा इधर नूं बेटा, किधर नूं जा रहा मैं बेसिकली ਇਹ मैं जा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ साउथ ईस्ट। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया भी मैं जे वैक्टर की गल करा तो वैक्टर ते मैं नॉर्मल अलजैबरा नहीं ला सकता, स्केलर अलजैबरा नहीं ला सकता। वैक्टर ਲਈ अलग तो अलजैबरा बनया हुंदा, वैक्टर ਲਈ अलग तो मैथ बनते हैं। वो +1 का पहला ही टॉपिक आ बेटा जो तुम वैक्टर्स पढ़ोगे। तो खुशी की गल यह भी 9th क्लास के वैक्टर्स नहीं है, थोड़ा वैक्टर अलजैबरा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा 9th क्लास के। बट +1 के जाके वैक्टर अलजैबरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उदू बिना थोड़ा कोई फिजिक्स का लैक्चर खत्म ही नहीं होना। तो ये चीज़ों का ख्याल रखियो। हाँ जी बेटा, तो अज आप कुछ रीड किया? अज आप किया मोशन ते रेस्ट की होंगे ने, मोशन किहदे विद रिस्पैक्ट टू देखना होंगे, टाइम ते प्रीवियस पोजीशन दे विद रिस्पैक्ट टू। अज आप गल की प्रीवियस पोजीशन दे विद रिस्पैक्ट टू, कल नूं आपां गल करांगे टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू। स्केलर की होंगे ने, वैक्टर्स की होंगे ने, डिस्टेंस की होंगे एंड डिसप्लेसमेंट बेटा की होंगे। ये सारे टॉपिक अज आप कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।